Good morning, students. Good morning. I am here to explain you the new concept. To explain you a new concept that is non-uniform motion. In the last video, I have cleared the topic that is uniform motion with detailed explanation. But in this video, now I am going to discuss about the non-uniform motion. That what is non-uniform motion? So non-uniform motion means if a body does not cover equal distance in equal interval of time. If a body does not cover equal distance in equal interval of time, if a body does not cover equal distance in equal interval of time, then the body is said to be in non-uniform motion. It means for each equal interval of time, the distance traveled by the body must be different, such as when the body travels from A to B, only A to B. Let us consider a distance that is AB, and the distance traveled by the body from traveling A to B is actually 150 meter in 10 seconds. Now when the body travels from B to C, then the distance traveled by the body is 200 meter in 10 seconds. And when the body travels from C to D, then the distance traveled by the body is 100 meter in 10 seconds. Now when the body travels from D to E, the distance traveled by the body is 50 meter in another 10 seconds. Now when the body travels from E to F, then the distance traveled by the body is 300 meter in another 10 seconds. It means for each 10 second, for each and every 10 second, the distance covered by the body is totally different in each case, in each interval of time. So this type of motion is said to be non-uniform motion. Actually, in case of non-uniform motion, the speed of the body does not remains constant. The speed of the body does not remains constant. So that's why the distance traveled for each equal interval of time is different for each path. ठीक है ना, सारे के सारे पाथ के लिए, सारे स्लॉट्स के लिए, जितने भी स्लॉट्स हमारे यहाँ पर हैं ए बी बी सी सी डी ई एफ, ठीक है ना, सी डी डी ई एफ, जितने भी स्लॉट्स हम यहाँ देख रहे हैं, सारे स्लॉट्स के लिए इक्वल टाइम के लिए इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल नहीं हो रहा है. ये इसीलिए नहीं हो रहा है क्योंकि स्पीड अलग अलग है, या हम कह सकते हैं अगर ऐसा होगा तो स्पीड कभी भी सेम नहीं आने वाली. इट मीन्स इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन द स्पीड विल नेवर बी सेम. ठीक है ना, तो वही लिखा हुआ है द स्पीड इज नॉट कांस्टेंट. तो लिखा हुआ है इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन द स्पीड इज नॉट कांस्टेंट और सेम. इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन द स्पीड इज नॉट कांस्टेंट और सेम, यानी नॉन यूनिफॉर्म मोशन के केस में स्पीड कांस्टेंट नहीं होगी, सेम नहीं होगी. ठीक है ना, तो स्पीड विल वेरी थ्रू आउट द मोशन. ठीक है ना, पूरे मोशन के दौरान स्पीड क्या करेगी, वेरी करेगी. अब हम देखते हैं कि स्पीड कैसे वेरी करेगी, कहाँ वेरी करेगी. हम हर एक इंटरवल की बात करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट ए बी. ए बी के लिए डिस्कस करेंगे. ध्यान से देखिएगा ए बी के लिए कैसे डिस्कस करेंगे. ठीक है, इन ईच केस, इन ए बी बी सी सी डी डी ई एंड ई एफ, इन ईच एंड एवरी केस द स्पीड इज डिफरेंट. So first of all, let me talk about the AB. For AB, speed, if a formula for the speed is speed equal to distance upon time. Speed equal to distance upon time. Speed S1 equals to D1 upon T1. ठीक है ना, when the body travels from A to B, the distance traveled is actually 150 meter, 150 upon 10. So the speed in this case is 15 meter per second. But in the case of BC, when the body travels from B to C, the similar formula that we have to use, that is S equal to distance upon speed, distance upon time. This means S2 equals to D2 upon T2. S2 equals to D2 upon T2. So D2 is 200 and T2 is 10. Now we actually divide it, so it becomes 20 meter per second. So in case when the body travels from B to C, the speed of the body is 20 meter per second. But in the first case, it means when the body travels from A to B, when the body travels from A to B, the speed of the body is 15 meter per second. In the another case, the speed of the body is 20 meter per second. And in the next case, we have calculated that with a similar formula, we have calculated that the speed of the body is 10 meter per second. And for D,
the same formula we have to use. That means S4 equals to speed equals to distance upon time. So S4 equals to d4 upon t4, that is 50 upon 10, because in this case when the body travels from D to E, the body traveled 50 meter in only 10 seconds. So the speed of the body is 5 meter per second only in case of DE. And now for the last case, that is for EF, when the distance traveled by the body is 300 meter in another 10 seconds. So we can say that in this case, in the case of EF, the speed of the body is 30 meter per second. So in each and every case, the speed of the body is different. The speed of the body will vary. So in this case, in the case of the non-uniform motion, the speed will not remain constant. Whereas in case of uniform motion, the speed will remain constant. So I think it is clear to you all. Now, the graph of the non-uniform motion, I'm going to discuss about the graph of non-uniform motion, because in the case of uniform motion, the graph of the uniform motion is a straight line. The slope of the uniform motion is a straight line. ठीक है ना, स्लोप जो था यूनिफॉर्म मोशन का क्या था, स्ट्रेट लाइन आ रहा था. तो मैं आपको बता दूं, डिस्कस भी कर लूँ जरा. यहाँ पे ध्यान से देखिएगा और ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ आपको बता रहा हूँ. ठीक है ना, जितने भी मोशन के ग्राफ होते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे डिस्टेंस टाइम ग्राफ होते हैं. दीज आर ऑल डिस्टेंस टाइम ग्राफ. इट इज़ एक्चुअली वाई एक्सिस and it is actually x axis. It is origin and this is the time. This is the time is on the x axis and distance is on the y axis. Now this is the distance time graph and this is the slope. The line between the x axis and the y axis is known as the slope. It is the slope, and the slope of distance time graph gives us information about the speed. And if the slope of distance time graph is a straight line, then the slope of distance time graph is a straight line है अगर ये, ठीक है, then क्या होगा, then the speed will be constant. स्पीड क्या होने वाली, कांस्टेंट होने वाली है. या हम कह सकते हैं अगर स्लोप स्ट्रेट लाइन आ रहा है तो स्पीड कांस्टेंट होगी. ठीक है, होगी जाके स्पीड कांस्टेंट, या स्पीड कांस्टेंट होगी तभी जो है वो हमारा स्लोप क्या आ रहा है, स्ट्रेट लाइन आ रहा है. ठीक है ना, इस केस में स्पीड कांस्टेंट ही होने वाली है. ये हमारा बेसिक फीचर होता है यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ का. ठीक है, नाउ ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन. आई एम गोइंग टू इरेज इट. Graph for uniform motion. Okay, now next is graph for non-uniform motion. This is the x-axis, this is the y-axis, this is the distance. The distance is taken on the y-axis, and on the x-axis time is to be taken, and this is the origin. So now this is the graph for non-uniform motion. ठीक है ना, ये ग्राफ है नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए. ध्यान से देखिएगा, इसका जो स्लोप आएगा ग्राफ का, ठीक है ना, वो एक कर्व लाइन आएगा. कैसा आएगा, कर्व लाइन. इट मीन्स द स्लोप ऑफ द स्लोप, दिस इज द स्लोप.
This is the slope, and slope gives us information about the speed. The slope of distance time graph, the slope of distance time graph gives us information about the speed. Speed के बारे में information देगा. And if this slope is a curved line, if the slope of distance time graph is a curved line, then the speed is not constant. The speed जो है वो constant नहीं होगी. स्पीड कांस्टेंट नहीं होगी, ठीक है ना. तो स्लोप जो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ का क्या है, कर्व लाइन अगर आएगा तो स्पीड कांस्टेंट नहीं होगी जाके. इट मीन्स ये किसका ग्राफ होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ होगा. तो आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा आप सभी को, ठीक है ना, कि यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन क्या है, उसका ग्राफ कैसे बनता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन क्या है, उसका ग्राफ कैसे बनता है. दोनों ही चीज़ें मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दी हैं. नाउ I am going to start a new topic, that is measurement of time. Article number 13.3. Article number 13.3 from NCERT. Okay. If you did not have a clock, how would you decide what time of the day it is? अगर आपके पास क्लॉक नहीं है तो आप कैसे डिसाइड करेंगे कि दिन का क्या समय हो रहा होगा. So have you ever wondered how our elders could tell the approximate time of the day by just looking at the shadows? तो आपको क्या कभी अपने आइडिया लगाया, सोचा कि हमारे जो एल्डर्स थे, हमारे जो पूर्वज थे, एंसेस्टर्स थे, वो कैसे शैडो की डायरेक्शन को देखकर, शैडो कितना लंबा बन रहा है, कितना छोटा बन रहा है, किस डायरेक्शन में बन रहा है, इन सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करके वो बता देते थे कि इतना टाइम अप्रॉक्सीमेट हो रहा है. और आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो वास्तव में बता देते हैं कि ये समय हो रहा होगा, और वही सटीक समय निकलता भी है बिल्कुल, ठीक है ना. सो हाउ डू वी मेजर टाइम इंटरवल ऑफ ए मंथ. हम किसी महीने का टाइम इंटरवल कैसे मेजर करेंगे. ठीक है भाई, शैडो देख के सन का बता दिया ये टाइम हो रहा है. मंथ को अभी तो हमारे पास कैलेंडर है, लेकिन पहले कैलेंडर जैसा कुछ भी नहीं था, तो कैसे पता लगता था कि 1 मंथ कंप्लीट हो गया है, 1 मंथ कंप्लीट हो गया, कैसे पता लगता था. 1 मंथ को वो लोग मून को देखकर पता लगाते थे कि 1 मंथ कंप्लीट हो गया. भाई पूर्णमासी, ठीक है ना, फुल मून जो होता है वो मंथ में एक बार होता है. 1 फुल मून से लेके नेक्स्ट फुल मून तक आपका 1 मंथ होता है, ठीक है ना. 1 फुल मून से लेकर नेक्स्ट फुल मून तक 1 मंथ होता है, ठीक है. ये अमावस्या से पता लगाते थे. तो इस तरीके से वो डिपेंड्स अपॉन द थिंग्स पर डिपेंडेंसी को देख कर पता लगाते थे कि हाँ भाई 1 मंथ कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना. तो इस तरीके से मंथ की जानकारी मिलती थी उनको. अब ईयर चेंज हो रहा है, ईयर का पता कैसे लगाते थे कि ईयर कितना ये निकल चुका है, सीज़न के बेसिस पर. अभी सर्दी आई है, ठीक है, फिर कुछ महीनों को समय के बाद सर्दी आएगी, तो इसका मतलब है कि एक चक्र पूरा हो चुका है, 1 रिवोल्यूशन हो चुका है, ठीक है ना. तो ईयर कंप्लीट हो गया. सीज़न को देखते हुए ईयर का पता लगाया उन्होंने, बिल्कुल ठीक किया. आवर एंसेस्टर्स नोटिस दैट मैनी इवेंट्स इन द नेचर. क्योंकि हमारे एंसेस्टर्स को ये पता था कि कुछ इवेंट नेचर में हर बार, हर समय, हर महीने पर, हर दिन के बाद रिपीट होते हैं. और जो चीज़ रिपीट होती है, इसी रिपीटेशन को उन्होंने जो है वो टाइम पीरियड के लिए बेस्ट माना. यानी कुल मिला के जितनी भी चीज़ें उन्होंने ऑब्जर्वेशन में अपनी ली थी, नोटिस की थी, जिसके बिहाफ पर वो एक्सप्लेनेशन दे रहे थे, वो सारे रिपीटेड इवेंट्स थे. वो सारे के सारे क्या थे, रिपीटेड इवेंट्स थे, ठीक है ना. तो अभी हम देखते हैं. Our ancestors noticed that many events in the nature repeats themselves after definite intervals of time. For example, they found that the sun rises every day in the morning. Sun rise करता है every day in the morning. The time between one sunrise and the next was called a day. एक सूर्योदय से लेकर दूसरे सूर्योदय तक के बीच का जो समय है उसको हम डे कहते हैं. इससे उन्होंने एक दिन का पता लगा लिया, भाई एक दिन कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट, सिमिलरली ए मंथ वॉज मेजर्ड फ्रॉम ए न्यू मून टू द नेक्स्ट, ठीक है ना. एक न्यू मून जो बनता है उससे लेकर अगले न्यू मून तक के बीच का जो समय है, जो टाइम इंटरवल है, वो क्या 1 मंथ है, ठीक है. ईयर वॉज फिक्स एज द टाइम टेकन बाय अर्थ टू कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन. एक चक्कर को पूरा करने में जितना समय लगता है वो 1 रिवोल्यूशन है, और वो 1 ईयर को सिग्निफाई कर रहा है. उसको सिग्निफाई कर रहा है 1 ईयर को, ठीक है ना. ऑफन वी नीड टू मेजर इंटरवल्स ऑफ टाइम which are much shorter than a day.
हमें कभी कभी जो है वो अभी अभी इस समय भी हमें जो है वो हम क्या केवल दिन के ही टाइम को हम लोग मेजर करते हैं कि भाई इतना 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, क्या यही हमारे लिए सब कुछ है? नहीं। क्या हमको बीच में समय निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती? बिल्कुल पड़ती। 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, तो ये सेकेंड्स में भी हम बात करते हैं। तो ये सारी चीज़ों की हमको ज़रूरत पड़ी, और जब इन सब चीज़ों की हमको ज़रूरत पड़ी तभी क्लॉक्स का इन्वेंशन हुआ। जब शॉर्टर टाइम पीरियड को निकालने की ज़रूरत पड़ी, तभी क्लॉक्स का इन्वेंशन हुआ। ठीक है, तो क्लॉक्स और वॉचेस आर परहैप्स द मोस्ट कॉमन टाइम मेजरिंग डिवाइसेस। क्लॉक्स और वॉचेस मोस्ट कॉमन डिवाइसेस हैं टाइम मेजरमेंट के लिए। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ क्लॉक्स एंड वॉचेस मेजर टाइम? क्या आपने कभी नोटिस किया कि क्लॉक्स और वॉचेस कैसे टाइम मेजर करते हैं? द वर्किंग ऑफ क्लॉक्स इज रेदर कॉम्प्लेक्स। जो वर्किंग है क्लॉक की बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, जटिल प्रक्रिया है। बट ऑल ऑफ देम मेक यूज ऑफ सम पीरियोडिक मोशन। लेकिन उसमें कुछ ना कुछ क्या होता है, कुछ पीरियोडिक मोशन होता है। वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन पीरियोडिक मोशन इज दैट ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। आपने सिंपल पेंडुलम के बारे में सुना होगा, देखा होगा। सिंपल पेंडुलम क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। सिंपल पेंडुलम को डिस्कस करते हैं, सारे पॉइंट्स को जरा डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखिएगा। सिंपल पेंडुलम क्या करता है? पीरियोडिक मोशन करता है। क्या करता है? पीरियोडिक मोशन करता है। कैसे करता है पीरियोडिक मोशन, वो देखिए। Periodic motion means the motion which repeats after a regular interval of time, that is known as the periodic motion. The motion which repeats after a regular interval of time, that is known as the periodic motion. Okay. So simple pendulum कैसे वर्क करता है देखिए, मैं आपको बताता हूँ। सिंपल पेंडुलम कैसे वर्क करता है? जैसे पेंडुलम जो होता है वो कहीं भी टॉप से कनेक्टेड होता है, ठीक है। इसमें एक हुक होता है और हुक में एक डोरी बंधी रहती है, ठीक है। एक डोरी होती है, लेंथ होती है, एक धागा बंधा रहता है, स्ट्रिंग। इसकी लेंथ लगभग अप्रॉक्स 1 मीटर होती है। कितनी होती है? 1 मीटर। और बेस में एक लट्टू जैसा कुछ लटका रहता है जिसे हम कहते हैं बॉब। क्या कहते हैं? बॉब कहते हैं, या इसका पूरा नाम होता है मेटालिक बॉब। मेटालिक बॉब, ठीक है, मेटालिक बॉब होता है, ठीक है। अभी सिंपल पेंडुलम पीरियोडिक मोशन कर रहा है, कैसे करेगा देखिए। अभी ये रेस्ट में है, अभी ये क्या है? रेस्ट में है, यहाँ पर बिल्कुल रेस्ट में है, ठीक है। रेस्ट में है भाई, अभी बिल्कुल शांति से लटका हुआ है, ठीक है। अभी हमने क्या किया, थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा आपको, मैं थोड़ा सा स्ट्रेट कर देता हूँ कैमरा को, आपको विजिबल हो ताकि पूरा कॉन्सेप्ट। अभी ये रेस्ट में है। अभी आपने इस साइड से फोर्स लगाया, इस साइड से फोर्स लगाया, धक्का दिया, इसको धक्का दिया। जब आप इसको धक्का देंगे आगे की तरफ, ठीक है ना, ये फोर्स लगाएंगे आगे की तरफ, धक्का दे रहे होंगे जब इसको आप, तो जब आप धक्का देंगे तो ये कहाँ जाएगा? यहाँ रेस्ट से किसी पॉइंट तक जाएगा, ठीक है ना। रेस्ट से किसी पॉइंट तक जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, तो जब रेस्ट से किसी पॉइंट तक जाएगा, मान लीजिए पेंडुलम यहाँ तक गया, बॉब, सॉरी मेटालिक बॉब जो स्ट्रिंग से लगा हुआ है वो यहाँ तक गया। स्ट्रेट लाइन बननी चाहिए भाई धागे में कोई स्लिंग नहीं आते, स्लिंग्स नहीं आते, धागा स्ट्रेट रहता है। देयर इज नो स्लिंग्स इन, ठीक ना। स्लिंग्स मतलब कोई जो है वो तिरछा नहीं होना चाहिए, धागा स्ट्रेट रहना चाहिए। यानी कि ये जो है रेस्ट से क्या हो गया? मोशन में हो गया। आपने फोर्स लगाया, ऐसा अपने आप नहीं हुआ। रेस्ट से क्या हुआ? मोशन में हुआ, ठीक, अपने आप नहीं हुआ, आपने इस पर फोर्स लगाया। फोर्स लगाया, फोर्स की वजह से ये रेस्ट से क्या हो गया? मोशन में हो गया। और ये अपनी अभी रेस्ट में था, रेस्ट में था, फोर्स से पहले रेस्ट में था, फोर्स लगा दिया, मोशन में हो गया, लेकिन ये अपनी मीन पोजीशन पर है। जो बॉब है अभी ये क्या है? अपनी मीन पोजीशन पर है। बॉब अपनी मीन पोजीशन पर है, ठीक है ना। मीन पोजीशन मतलब एवरेज पोजीशन पर है, ठीक है। अभी जब इस पर फोर्स लगाओगे, ये मान लीजिए ये यहाँ पे ए पॉइंट पर था। किस पॉइंट पर था? ए पॉइंट पर था, ठीक है।
ए पॉइंट पर था ये बॉब ए पॉइंट पर था, मीन पोजीशन पर था, और इस ए से ये कहाँ गया, मान लीजिए एक्सट्रीम ए पॉइंट पर था, मैं यहाँ भी लिखे दे रहा हूँ ये, और ए से कहाँ गया, ये बी पॉइंट तक गया। ठीक है, अभी बॉब जो है वो बी पॉइंट पर है और ये अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर है। किस पोजीशन पर है, एक्सट्रीम पोजीशन पर है। मतलब एक्सट्रीम क्यों बोला गया है इसको, एक्सट्रीम इसलिए बोला गया क्योंकि ये अब इससे आगे नहीं जा सकता, ये अब इससे आगे नहीं जा सकता। ठीक है ना, ये क्या करेगा, क्यों नहीं जा सकता इससे आगे, क्योंकि इसका जो वेलोसिटी है इस पॉइंट पर, बी पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो क्या हो गया है, ज़ीरो हो गई, इसकी स्पीड ज़ीरो हो गई है, इसकी स्पीड ज़ीरो हो गई है। ठीक है, अब इसमें कोई स्पीड नहीं बची, वेलोसिटी ज़ीरो हो गई है। अब जब इसमें वेलोसिटी अगर होती तो ये और आगे जाता, लेकिन वेलोसिटी ज़ीरो हो गई तो कहाँ आएगा, ये पीछे की तरफ आएगा। और इसने जितना यहाँ से लेके जितना ये पाथ कवर किया है, जितना ये पाथ कवर किया ए टू बी जाने में जितना पाथ कवर किया है, दैट वी कॉल्ड इट एम्पलीट्यूड, दैट वी कॉल्ड एम्पलीट्यूड। इस पाथ को, जो पाथ है ए बी पाथ है, जो ए बी पाथ है जो बॉब ने कवर किया है, इसको हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं, दैट वी कॉल्ड इट एम्पलीट्यूड। ठीक, द डिस्टेंस बिटवीन द मीन पोजीशन एंड द एक्सट्रीम पोजीशन, द डिस्टेंस बिटवीन द मीन पोजीशन एंड द एक्सट्रीम पोजीशन इज नोन एज द एम्पलीट्यूड। ये 9th में भी आप पढ़ेंगे जाके, ध्यान से समझ लीजिएगा। तो द डिस्टेंस बिटवीन द मीन पोजीशन एंड द एक्सट्रीम पोजीशन इज नोन एज द एम्पलीट्यूड। अभी ये बॉब दोबारा से, भाई यहीं तो लटका नहीं रहेगा, अभी कहाँ आएगा, दोबारा से वापस आएगा। तो दोबारा से वापस आएगा तो बी से कहाँ आएगा, ए पर आएगा, और ए से दोबारा दूसरी तरफ जाएगा। अब यहाँ रुक नहीं जाएगा क्योंकि अभी इसमें मोमेंटम बना हुआ है। ठीक है, अभी दोबारा से दूसरे पाथ पर जाएगा, आगे की तरफ जाएगा। ठीक है, और मान लीजिए बॉब यहाँ तक आया, बॉब यहाँ तक आया, सी पॉइंट तक आया। ठीक है, तो ये कहाँ, ए से कहाँ आएगा, सी पॉइंट तक आएगा। फिर से जो सी पॉइंट तक आया है, ये इसका क्या हो गया, एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन हो गया, और इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, ज़ीरो हो गई। वेलोसिटी क्या हो गई, ज़ीरो हो गई। ये जो डिस्टेंस है ए सी, इसे भी हम क्या कहेंगे, एम्पलीट्यूड कहेंगे। और ये दोनों एम्पलीट्यूड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। जितना ए बी पास होगा उतना ही ए सी पास होगा। ये दोनों ही एम्पलीट्यूड इक्वल होंगे, जितना ए बी पास होगा उतना ए सी पास होगा, दोनों इक्वल होंगे। समझ में आ गई बात। ठीक है, तो दोनों ही इक्वल होंगे। अच्छा, क्या ये प्रोसेस यहीं रुक जाएगी, आपने फोर्स लगाया, ये मीन पोजीशन से कहाँ गया, एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से वापस आया मीन पे, क्या यहीं रुक जाएगा, ना, कहाँ जाएगा, पीछे सी पॉइंट तक, फिर से एक्सट्रीम पे पहुँच गया, फिर से ये यहाँ से क्या यहीं रुक जाएगा, ना, एक्सट्रीम से दोबारा कहाँ जाएगा, मीन, मीन से कहाँ जाएगा, एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से मीन, मीन से एक्सट्रीम। जितना इधर डिस्टेंस कवर करेगा लेफ्ट हैंड साइड, जितना राइट हैंड साइड डिस्टेंस कवर कर रहा है उतना लेफ्ट हैंड साइड कवर करेगा, जितना लेफ्ट हैंड साइड डिस्टेंस कवर करेगा उतना राइट हैंड साइड डिस्टेंस कवर करेगा। यानी कि हर एक केस में जो डिस्टेंस कवर हो रही होगी, हर एक जो हमारा, इसे हम कहते हैं ऑसिलेशन, क्या कहते हैं, ऑसिलेशन कहते हैं, दैट वी कॉल्ड इट ऑसिलेशन। ऑसिलेशन का मतलब होता है, मैं आपको समझा दूं अगर सीधे शब्दों में बताऊं तो, देखिए वन ऑसिलेशन कहाँ पर कंप्लीट माना जाता है, व्हाट इज़ वन ऑसिलेशन, वन ऑसिलेशन कितना होता है, मैं आपको बता दूँ। बॉडी ने कहाँ से स्टार्ट किया, ए से, और दोबारा ए पर आ जाए, घूम फिर के दोबारा ए पर आ जाए, वन ऑसिलेशन हो जाएगा। ए से कहाँ गई बॉडी, बी, यानी मेटालिक बॉब कहाँ गया, ए से बी, बी से कहाँ गया, बी से दोबारा ए पर आया, तो सोचो कि वन ऑसिलेशन हो गया, नहीं हुआ। ए से बी, क्या यहाँ रुक थोड़ी ना गया आके, ए से बी, बी से कहाँ गया, ए से फिर कहाँ गया, सी, या आप कह सकते हैं ए टू बी और बी टू सी, और सी से दोबारा कहाँ पर आया, ए पर आ गया। अब वन ऑसिलेशन हुआ, नाउ इट इज सेड टू बी वन ऑसिलेशन। अब वन ऑसिलेशन हुआ, ए से बी, बी से सी, सी से कहाँ दोबारा ए, ये वन ऑसिलेशन है।
ठीक है ना। तो वन ऑसिलेशन में, ये जो वन ऑसिलेशन देख रहे हैं, तो वन ऑसिलेशन में जो एम्पलीट्यूड होगा दोनों साइड वो क्या होगा, इक्वल होगा, और ये प्रोसेस लगातार चलती रहेगी. सो दैट्स वाई इट इज नोन एज द पीरियोडिक मोशन. दैट्स वाई अ सिंपल पेंडुलम परफॉर्म्स अ पीरियोडिक मोशन. ओके, so I think it is clear to you all. Now this much is very sufficient for this video, and the next remaining topics of the simple pendulum I will discuss in the next video. Till then you have to watch this video, you have to prepare the notes from this video, and if you like it then please like this video and share it as much as you can. And if you haven't subscribed my channel till now, then please subscribe it for the latest notification of the videos. Okay, so thank you students, have a good day.